बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum student. We start with the name of Allah who is most beneficent and merciful. This is class 7 and the period is English language text. In our fourth video, we will study our unit number 12, which is persuasive magazine article. You know that student, writing article for magazine is definitely a big dream for a lot of writer. This is because the pay is usually huge, and not only that, it also offers exposure that can lead more article writing projects. You know that article writing is the written form which provide information to the reader about some particular topic. Persuasive magazine article. Persuasive magazine article try to interest the reader in particular topic. It provides information about the content or about the topic. It also suggests how the reader should react to the content of the story. Must remember here, persuasive magazine article targeted at a particular audience such as teenagers, young worker adults or elderly. In these articles, writers choose emotive words to show their attitude and feelings towards the topic, and also use linking words that links cause and effect, that links problem and solution, and also that link consequence and sequence. There are some features of persuasive magazine article. These are an introductory statement. Generally, writer begin their articles with an introductory statement. Introductory statement introduce the topic in an attention grabbing way. It gives point of view and idea of argument that follow. The other feature is a convincing argument, in which writer continues argument. The aim is convincing the reader logically. The third and fourth feature is use of emotive word. We use emotive word to obtain emotion, and use of jargon. It is a kind of language in which the writer pursue the reader by appealing to their need, emotion, and sometimes fear by comment, fact, and information. And the last feature is conclusion, in which writer conclude by summarizing the article and reinforce writer's point of view. These are common features of article. Now come to the reflecting, in which they are asking that what kind of magazine article you read. I am interested in the topic of current affair and topic of personality. That's why I read or I try to read
articles regarding current affair or personalities. They are asking that what interests me to read further. Logical argument interests me to read these articles further. Do I always believe what is written? Sometime I believe or sometime not. I don't believe what is written in the article. How important are photographs? We know that photographs catch our attention or develop our interest. That's why photographs are important for articles. We are studying today feature article, which is starting afresh. We know that articles are divided or articles are composed into 4 parts. The first part called headline, in which we will see the name of article. Here you can see that on page number 305, the headline is starting afresh. This is feature article. Feature article means it gives depth information regarding person, regarding event or issue, and it is written by Don V. The other part of our article is lead. Lead depends on few lines or paragraph which give brief information about the article. We are studying first our lead. What do? क्या करते हैं? A young award winner, a tuition center owner and a top student in class have in common. वो लोग जो अवार्ड विनर होते हैं, वो लोग जो ट्यूशन सेंटर ओनर होते हैं या अपने क्लास के जो टॉपर होते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं जो अपनी इस पोजीशन को बरकरार रखते हैं, रिटेन रखते हैं. Not the fact that they are genius, but the reality that they were once repeat student in school. सिर्फ एक ही फैक्ट नहीं है कि वो बाय बर्थ जीनियस होते हैं, बल्कि एक रियलिटी ये भी है कि उनमें से कई ऐसे पर्सन होते हैं जिन्होंने अपना स्कूल ईयर कहीं ना कहीं रिपीट किया होता है या वो एज ए रिपीट स्टूडेंट अपीयर हुए होते हैं. नाउ दे सीम टू हैव इट ऑल, गुड एजुकेशन, अवार्ड्स एंड रिवॉर्डिंग कैरियर. अब उनके पास हमें सब कुछ नजर आता है, बेस्ट एजुकेशन, उनके अवार्ड्स और उनका फ्रूटफुल कैरियर. बट इट वॉज नॉट ऑल स्मूथ सेलिंग इन स्कूल. लेकिन ये सब कुछ उन्होंने एक स्मूथ वे में हासिल नहीं किया होता, उन्होंने ये सब कुछ एक स्मूथली गेट नहीं किया. उनके पास काफ़ी सारी हर्डल्स आई हुई हैं इन चीज़ों को गेट करने में. वी गैदर्ड अ फोकस ग्रुप ऑफ एक्स रिपीट स्टूडेंट. हमने एक ग्रुप लिया एक्स रिपीट स्टूडेंट का. काउंसलर एडवाइजर्स or advisor called counselors. They are person who give advice. Counselors को लिया, 2 students and 2 teachers. 2 student और 2 teachers को इस डिस्कशन में लिया. For this casual discussion, एक फ्रेंडली डिस्कशन थी इसके लिए. To find out, हम फाइंड आउट करना चाहते थे, हम मालूम करना चाहते थे how it feels to be retained, कि कैसा महसूस होता है एक रिपीटेड स्टूडेंट होना. How it can be avoided, हम किस तरह से एक रिपीटेड स्टूडेंट होने से बच सकते हैं. हाउ टू कॉप, कॉप मीन्स मैनेज. हाउ टू कॉप इफ यू आर अ रिपीट स्टूडेंट, आप किस तरीके से मैनेज करेंगे अगर आप एक रिपीट स्टूडेंट हो गए हैं. एंड व्हाट पेरेंट्स कैन डू टू हेल्प, और इस तमाम एंटायर सिनेरियो में, इस सिचुएशन में हमारे पेरेंट्स किस तरीके से हमें हेल्प आउट कर सकते हैं. We have studied the lead of this article. Now the other part is body of article. Body of article consists on many subtitles and each subtitle provide entire information about the paragraph. Now come to the body of article and we will see first subtitle or subheading, a second chance.
It is not easy conquering those very real fear once you are retained. ये आसान नहीं होता उस खौफ को डिफीट करना जो हमें एक दफा हासिल हो जाता है एज ए रिपीट स्टूडेंट. द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ योर पेरेंट्स, हमारे सामने पेरेंट्स की डिसअपॉइंटमेंट होती है. लॉस ऑफ फ्रेंड, हमारे सामने अपने दोस्तों के खो जाने का दुख होता है. एंड द लिस्ट गोज ऑन. और इसी तरीके की बहुत सारी सिचुएशन होती हैं जो हमें फेस करनी होती हैं. Jennifer V, 24, a teacher at a secondary school shared. Jennifer V हैं जो कि 24 years old हैं और एक सेकेंडरी स्कूल की टीचर हैं. वो शेयर करती हैं, very often the student beg to be passed instead of repeating the year. अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे एयर रिपीट करने के बजाय हमसे रिक्वेस्ट करते हैं काइंडली हमें पास कर दिया जाए या मूव कर दिया जाए टू द नेक्स्ट ईयर. बट इट डजंट हैपन, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है. एज दे हैव फेल्ड ड्यू टू इनएडुकेट नॉलेज. इनएडुकेट मींस इनसफिशिएंट, पुअर नॉलेज. वो अपने सब्जेक्ट में फेल हुए होते हैं पुअर नॉलेज की बिहाफ पर. ऑफ द सब्जेक्ट्स, अपने सब्जेक्ट में पुअर नॉलेज की बिहाफ पर फेल हुए होते हैं. मूविंग देम अप विद सच अ शेकी फाउंडेशन. इस फाउंडेशन की बिहाफ पर अगर उन्हें मजीद फर्दर क्लास में मूव कर दिया जाए, विल ओनली मेक कॉपिंग विद नेक्स्ट ईयर सब्जेक्ट इवन मोर डिफिकल्ट. तो वो सिर्फ सब्जेक्ट कॉपी करने के काबिल रहेंगे और वो उनके लिए ईयर और इससे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. शी एक्सप्लेन्ड. उन्होंने इस तरीके से इस बात को वाजे किया. इंस्टेड ऑफ ड्वेलिंग नेगेटिवली, ड्वेलिंग मीन्स बिकम, नेगेटिव होने के बजाय ऑन दिस इशू, इस इशू पर रिपीट स्टूडेंट शुड लर्न. रिपीट स्टूडेंट को सीखना चाहिए टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, कि इस सिचुएशन को किस तरीके से एक्सेप्ट किया जाए. एंड वर्क इवन हार्डर, और किस तरीके से मजीद मेहनत की जाए. टेक जिल चैन फॉर एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल मिसाल दी जा रही है एक स्टूडेंट की. टेक जिल चैन उनका नेम था. शी वॉज हिट हार्ड व्हेन शी वॉज रिटेन इन प्राइमरी 5. उन्होंने सख्त मेहनत की जब वो प्राइमरी 5 में एज ए रिपीटेड स्टूडेंट अपीयर हुई थी. वॉचिंग ऑल फ्रेंड्स मूविंग ऑन विदाउट हर. वो ये देख रही थी कि तमाम फ्रेंड्स उनके बगैर नेक्स्ट क्लास में मूव कर रहे हैं. आई ब्लेम्ड फॉर माई प्लाइट स्पेशली माई टीचर. मैंने हर एक को ब्लेम किया अपनी इस ट्रबल पर, इस डिफिकल्टी पर. प्लाइट मीन्स ट्रबल एंड डिफिकल्टी, एंड स्पेशली माई टीचर्स. और खास तौर पर मैंने अपने टीचर्स को ब्लेम किया. शी साइड. उन्होंने एक गहरी सांस ली. बट थिंग टुक अ टर्न फॉर द बेटर. लेकिन चीजें एक ही दम बेहतरी की तरफ टर्न हो गई. व्हेन शी स्टार्टेड टॉपिंग हर क्लास इन रिपीट ईयर. जब उन्होंने अपने रिपीट ईयर में अपनी क्लास में टॉप करना शुरू किया. आई देन रियलाइज्ड बाय कंबाइनिंग व्हाट आई ऑलरेडी न्यू. मैंने रियलाइज किया कि कंबाइन कर जो मैं पहले से जानती थी विद व्हाट आई वॉज रीलर्निंग, उसके साथ जो मैं दोबारा पढ़ रही थी, दोबारा सीख रही थी. आई कुड डू रियली वेल. मैंने वाकई बहुत बेहतर परफॉर्म किया. बीइंग रिटेन वॉजंट सो बैड आफ्टर ऑल. इसके बाद रिपीटेड स्टूडेंट होना मेरे लिए बिल्कुल भी बैड कंडीशन या बैड सिचुएशन नहीं रही. Jill went on to clinch a good job with a shipping firm after her O-level. Clinch means settle. उसके बाद जिल अपना O-level कंप्लीट करने के बाद एक अच्छे शिपिंग फर्म में जो है उन्होंने जॉब गेट कर ली. सेकेंड चांस. नाउ शी इज प्राउड दैट शी हैड ग्रैप्ड हर सेकेंड चांस. अब वो इस चीज पर फख्र महसूस करती हैं कि उन्होंने होल्ड किया. ग्रैप्स मीन्स होल्ड करना, कैच करना सेकेंड चांस को. एंड मोटिवेटेड हर सेल्फ टू कंप्लीट हर O-level. और उन्होंने खुद को मोटिवेट किया कि वो अपना O-level कंप्लीट करेंगी. फॉर सम ऑफ अस बीइंग रिटेन कुड बी ड्यू टू अ लैक ऑफ हार्ड वर्क. हम में से अक्सर ऐसे लोग होते हैं
जो रिपीटेड इस वजह से रहते हैं कि उन्होंने हार्ड वर्क नहीं की होती या कम हार्ड वर्क की होती है, कम मेहनत की होती है. बट व्हाट अबाउट दोज who are generally slow at picking up? Generally means actually. लेकिन उनके बारे में क्या ख्याल है जो एक्चुअली ऐसे लोग होते हैं जिनमें पिक करने की एबिलिटी कम होती है. Sharon Chu, 21, a counselor at a local community service center, वो कहते हैं had this to say, कहते हैं having a high IQ is not the issue. अच्छा IQ होना जरूरी नहीं है. As long are you willing to work? जितनी देर आप काम करने के लिए तैयार हैं वो चीज अहम है. The battle is already won. अगर आप कंटिन्यूसली आप एक मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करने के लिए या काम करने के लिए तैयार हैं तो ये समझें कि ये बैटल, ये जंग आप ऑलरेडी जीत चुके हैं. डोंट बी बॉदर्ड बाय टाइम. बॉदर्ड मीन्स वरी. अपने टाइम की वजह से परेशान ना हो कि ये टाइम निकल जाएगा. बिकॉज एजुकेशन नेवर एंड. क्योंकि तालीम कभी भी एंड नहीं होती. Hannah Su, 27, a youth worker at a family service center. हन्ना सू जो कि 27 इयर्स की हैं, ये एक यूथ वर्कर हैं फैमिली सेंटर, सर्विस सेंटर में. फर्दर एडेड, उन्होंने मजीद कहा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू लेट एनीवन और एनीथिंग पुट यू डाउन. जो सबसे अहम जरूरी चीज जो है वो ये है कि कभी भी खुद को किसी की भी बात पर वीक ना होने दें. अपने आप को कभी गिरने ना दें, अपने आप को डिसअपॉइंट ना होने दें. अपनी होप्स किसी की भी बात पर कम मत कीजिए. उन्होंने कहा सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है. द अदर सब हेडिंग इज फाइंडिंग सपोर्ट. अब जो पैराग्राफ हम पढ़ेंगे वो इसी से इसके ही बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा. One has to start by admitting that no amount of nagging from anyone. हम में से कुछ ऐसे होते हैं जो इस बात को एडमिट कर कर शुरू करते हैं कि क्रिटिसाइजिंग किसी की भी तरफ से अगर हमें मिले तो वो हमें 48 से 84 पर लेकर आ सकती है विदाउट अ कमिटमेंट टू स्टडी, बगैर पढ़े. Only the student involved can turn matters around. वो लोग जो स्टडी करते हैं वो अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग की कंडीशन को टर्न करने की एबिलिटी रखते हैं. Of course, having good friends who lend support is also a great boost when the going get tough. ये एक हकीकत है कि अगर आपके अच्छे दोस्त हों तो वो आपको बूस्टअप करते हैं आपके टारगेट को अचीव करने के लिए. दिस वॉज सर्टेनली ट्रू फॉर रुशना मोहम्मद, नाउ 25. ये वाकई बात हकीकत साबित हुई रुशना मोहम्मद के लिए जो कि अब 25 की हैं. हु पुल्ड थ्रू हर ओ लेवल एज अ प्राइवेट कैंडिडेट. उन्होंने अपना ओ लेवल किया था प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर. मीन्स कि उनका कोई स्कूल नहीं ज्वाइन किया हुआ था, वो एज अ प्राइवेट उन्होंने घर में स्टडी कर कर अपना ओ लेवल क्लियर किया था. नाउ द प्रिंसिपल ऑफ अ प्राइवेट ट्यूशन सेंटर, और अब वो प्राइवेट ट्यूशन सेंटर की प्रिंसिपल थी. शी रिकॉल्ड, उन्होंने रिकॉल किया हाउ हर फ्रेंड्स फॉर्म अ स्टडी ग्रुप विद हर. कि किस तरीके से उनके दोस्तों ने उनके साथ एक ग्रुप बनाया था. एंड इंश्योर्ड दैट शी रिवाइज्ड हर होमवर्क, हर वर्क एवरी डे. और वो ये यकीन करते थे टू मेक श्योर, इंश्योर मीन्स टू मेक श्योर कि वो अपना वर्क डेली बेसिस पर रिवाइज करें. दे अंडरस्टूड दैट इट टुक अ लॉट ऑफ विल पावर. वो इस बात को समझते थे कि इसके लिए बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन की जरूरत है. विल पावर, डिटर्मिनेशन, कुव्वत मजबूत, कुव्वत इरादी. के मीन्स अगर आपने एक चीज का फैसला कर लिया तो वो हमें करना है. टू बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मीन्स स्टडी, मीन्स मुतवादिर, एक के बाद एक, कि उन्हें कंसिस्टेंट होना है इन हर वर्क एज अ प्राइवेट कैंडिडेट. अपने प्राइवेट कैंडिडेट होने के तौर पर उन्हें अपने वर्क को कंसिस्टेंटली
कंप्लीट करना है, रिपीट करना है. So they would look for her at home if she failed to turn up for the revision session. तो अगर वो उस रिवीजन सेशन में नहीं जा पाती थी तो वो उनके घर में आके उनका वर्क कंप्लीट करवाते थे. टर्न अप, बी फाउंड, उनके घर में आते थे उनके लिए. बट नॉट ऑल रिपीट स्टूडेंट्स आर लकी इनफ टू फाइंड अ सपोर्टिव ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. लेकिन बहुत सारे रिपीटेड स्टूडेंट इतने लकी नहीं होते कि उन्हें अपने फ्रेंड की सपोर्ट मिले. हु विल रियली अराउंड देम, कि जिनके इर्द गिर्द उनके फ्रेंड का ग्रुप हो. व्हेन थिंग गो रॉन्ग, जब चीजें उनके अगेंस्ट जा रही हों तो वो फ्रेंड उनको बूस्ट अप करें. ऐसे लोग बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके सराउंडिंग में उनके फ्रेंड मौजूद नहीं होते. समटाइम्स रिपीट स्टूडेंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू फिट इनटू देयर न्यू क्लास. बहुत दफा रिपीट स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपनी न्यू क्लास में एडजस्ट करने के लिए. स्पेशली व्हेन अदर क्लासमेट्स टेंड टू ऑस्ट्रसाइज देम. जब खास तौर पे जब न्यू स्टूडेंट आकर ये एक सोच बना देते हैं, ये थिंक बना देते हैं कि इन रिपीट स्टूडेंट को एक्सक्लूड कर देना है अपनी क्लास से. ऑस्ट्रसाइज मीन्स एक्सक्लूड. दिस हैपेंस व्हेन द स्टूडेंट इन द क्लास फील दैट द रिपीट स्टूडेंट विल ओनली पुल डाउन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास. ये उस वक्त होता है जब नए आने वाले स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इन रिपीट स्टूडेंट की वजह से हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी, डिमोलिश हो जाएगी. पुल डाउन मीन्स डिमोलिश होना. ये रिपीट स्टूडेंट हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस को डिमोलिश कर देंगे. बट इन मैनी केसेस रिपीट स्टूडेंट डू नॉट हैव प्रॉब्लम फिटिंग इनटू देयर न्यू क्लास. लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि रिपीट स्टूडेंट को अपने न्यू क्लास में या रिपीटेड क्लास में फिट होने में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती. वी हैव 3 रिपीट स्टूडेंट इन आवर क्लास. हमारी क्लास में 3 रिपीट स्टूडेंट थे. एंड वी ऑल गेट अलोंग रियली वेल. और हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से चले. मैनी ऑफ अस हेल्प ईच अदर टू अचीव द सेम गोल्स. हम में से एक दूसरे की मदद करता था वो गोल जो हम लोगों के सेम थे उसको अचीव करने में. और वो गोल क्या थे? टू गेट गुड ग्रेड्स. उन सबके सेम गोल थे, अच्छा ग्रेड गेट करना. ऑब्जर्व एमी लिंग 16 आई स्टूडेंट एट प्रीमियर स्कूल. एमी लिंग जो 16 ईयर की थी, प्रीमियर स्कूल की स्टूडेंट थी, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया स्टूडेंट शुड बी मोर ओपन माइंडेड. स्टूडेंट को ओपन माइंड होना चाहिए एंड अंडरस्टैंड दैट व्हेन अ न्यू स्कूल ईयर स्टार्ट. और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब न्यू सेशन स्टार्ट होता है ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वल. तमाम स्टूडेंट्स इक्वल हैं रिगार्डलेस एनी हाउ ऑफ देयर एज एंड पास्ट. के उनकी एज क्या है और उनका पास्ट क्या था, कि वो रिपीट स्टूडेंट हैं या न्यू क्लास के अंदर आए हैं. एमीज क्लासमेट वैलेरी को ऑल्सो 16 एग्रीड. उनकी एक क्लासमेट थी वैलेरी को, वो भी 16 की थी. उन्होंने कहा इन फैक्ट द रिपीट स्टूडेंट टेंड टू डू बेटर देन मोस्ट ऑफ अस. कि रिपीट स्टूडेंट हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर लेते थे. एंड दे रिमाइंड अस टू वर्क हार्ड. और हमें ये रिमाइंड करवाते थे कि मजीद मेहनत कीजिए. एंड नॉट टू रिमेन कंटेंटेड विद आवर एवरेज मार्क. और सिर्फ इसी पे सेटिस्फाइड ना रहें जो हमने एवरेज मार्क गेट किए हैं. कंटेंटेड मीन्स सेटिस्फाइड. when we should be striving for top marks instead. इसके बजाय स्ट्राइव करते रहें, स्ट्रगल करते रहें टॉप मार्क्स तक पहुंचने के लिए. फॉर अ रिपीट स्टूडेंट द पेरेंट स्टैंड इज क्रूशियल. रिपीट स्टूडेंट के लिए जो सबसे अहम लोग होते हैं वो उनके वालिदैन होते हैं. इन जिल्स केस फॉर एग्जाम्पल her parents were the biggest barrier she had to overcome. Overcome means handle.
जिल के केस में जो सबसे बड़ा बैरियर था, जो रुकावट थी, वो उनके पेरेंट्स थे. माई डैड एक्चुअली इंसिस्टेड दैट आई ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल. मेरे फादर ये इंसिस्ट करते थे कि मैं स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाऊं एंड डू टू वर्क इंस्टेड, और उसके बजाय कोई काम करूं. ही थॉट आई वॉज नॉट कट आउट टू स्टडी. कट आउट मीन्स वर्क हार्ड. वो सोचते थे कि मैं स्टडी के लिए मजीद वर्क हार्ड या ज्यादा वर्क हार्ड नहीं कर सकती. बट आई प्रूव्ड हिम रॉन्ग. लेकिन मैंने उन्हें गलत साबित किया. When I became the top student in class the next year, जब next year मैं क्लास के टॉप स्टूडेंट में शामिल हो गई. I can't imagine what would have become of me, and I really gone out to work with only primary 5 qualification. मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे साथ क्या होता अगर मैं सिर्फ प्राइमरी 5 क्वालिफिकेशन के बाद किसी काम पर लग जाती. बट फॉर रोशना हर पेरेंट्स रिमेन सपोर्टिव थ्रू आउट. लेकिन रोशना के लिए उनके पेरेंट्स मुस्तकिल तौर पर सपोर्टिव रहे. आई हैव टू थैंक देम फॉर बीइंग देयर फॉर मी. मैं उनके शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहे. रीटेकिंग माई ओ लेवल वॉज मेड मच ईजियर नोइंग दैट दे बिलीव इन मी. ये मेरे लिए बहुत इजी हो गया था ओ लेवल अचीव करना जब मैंने ये सोचा कि वो मुझ पर अब भी यकीन रखते हैं कि मैं ये काम कर सकती हूँ. आई वॉज मोटिवेटेड टू वर्क हार्डर. मैं अपने आप को और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती थी. एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू लेट देम डाउन. और मैं नहीं चाहती थी जो उम्मीदें मेरे पेरेंट्स को मुझसे हैं वो उम्मीदें उनकी खत्म हो जाएं. Education is priceless. It is the fourth part of our article in which we will conclude our article. Although most students stay on in school after being retained. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रिपीट स्टूडेंट होने के बाद भी स्कूल में मौजूद होते हैं. There are still some who see repeating the year as a year wasted. और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो रिपीटेड एयर को एक वेस्ट एयर के तौर पर समझते हैं. वन ऑफ जेनिफर्स स्टूडेंट, एक जेनिफर के एक स्टूडेंट थे, हैड टोल्ड हर दैट वन मोर एयर वुड कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. एक नया साल बहुत सारे पैसों का खर्चा लेकर आ जाएगा. एंड ही वुड रैदर गो आउट टू वर्क. उसके बजाय वो बाहर जाएगा और काम करेगा. एंड अर्न दैट मनी विद इन द ईयर. और उतने ही पैसे एक साल में अर्न कर लेगा. माई जॉ नियरली ड्रॉप. मैं बहुत ज्यादा हैरान हुई ये बात सुनकर. व्हेन आई हर्ड दैट, जब मैंने ये बात सुनी. व्हाट मेक्स हिम थिंक ही इज गोइंग टू अर्न दैट सम. उसे ऐसे क्या सोचा कि वो इतना सम अर्न कर लेगा, इतने पैसे अर्न कर लेगा विद इन अ ईयर, एक साल में, विद हिज करंट क्वालिफिकेशन. जितनी क्वालिफिकेशन उसकी है उसके मुताबिक वो कैसे इतने पैसे अर्न कर सकता है विद इन अ ईयर, एक साल में. इंडीड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इज प्राइसलेस. यकीनन एजुकेशन की वैल्यू प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं है. अनफॉर्चुनेटली इन सिंगापुर पेपर क्वालिफिकेशन स्टिल राइड हाई ऑन आवर प्रायोरिटी लिस्ट. सिंगापुर में पेपर क्वालिफिकेशन जो है वो ज्यादा बेहतर कंसीडर की जाती है. रिटेन स्टूडेंट आर दस ऑफन सबकॉन्शियसली लेबल्ड एज फेलियर इन लाइफ बाय सोसाइटी. हमारी सोसाइटी फेलियर स्टूडेंट को सबकॉन्शियसली ये लेबल लगा देती है कि ये हमारी सोसाइटी के नाकाम लोग हैं. सो मच सो दैट दे स्टार्ट बिलीविंग इन दिस लाइफ. और वो लोग इस झूठ पर यकीन करना शुरू कर देते हैं. बट द ट्रूथ इज दैट रिपीटिंग अ ईयर डज नॉट मेक यू अ फेलियर एज अ पर्सन. लेकिन ये हकीकत नहीं है कि रिपीट करना एक साल का आपको जिंदगी का नाकाम शख्स बना देता है. हनास ओपिनियन एंडेड आवर डिस्कशन ऑन अ पॉजिटिव नोट.
हनास के ओपिनियन से हमने अपना डिस्कशन एंड किया. वॉट एवर अदर मे थिंक, जो भी दूसरा कोई आपके बारे में सोचे, डोंट लेट देम अफेक्ट योर सेल्फ वर्थ. अपनी वैल्यू पर कभी अफेक्ट ना आने दें, अपनी वैल्यू को अफेक्टेड ना करें. एज लॉन्ग एज यू रिमेन पॉजिटिव, जब तक आप पॉजिटिव रहेंगे, बीइंग रिटेन इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. रिपीट स्टूडेंट होना दुनिया का खत्म हो जाना नहीं होता. विद मोर एफर्ट एंड बेटर टाइम मैनेजमेंट, मजीद एफर्ट के साथ और मजीद टाइम मैनेजमेंट के साथ, यू कैन डू इवन बेटर विद दिस सेकेंड चांस. आप सेकेंड चांस में इससे ज्यादा अच्छे तरीके से, इससे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं. एंड इन लास्ट वी विल सी दिस आर्टिकल इज फॉर टीन्स and February, they mentioned date in last February 2000. This is end of our article. Now come to the vocabulary. We will see emotive words. Emotive words, intentional choice of words to obtain emotion. We will use emotive word intentionally to obtain emotion. We will understand this with two examples. We have two examples. Non-emotive way, in which I can say that the government will reduce interest rate. And if I want to say this in emotive version, I will say the government will slash interest rate. Here reduce and slash have same meanings, but I want intentionally choose this word to obtain emotion. That's why I am using slash. So I think you can understand the difference between common words or non-emotive words and emotive words. We use emotive word intentionally to get emotion or to obtain emotion. Now come to the writing workshop, in which writing workshop is about an article writing, in which you will write an article. How you will write an article we have discussed thoroughly. Now you can write your own article by following these steps. Now come to the home task. Write an article. You will read more articles and then you will select your favorite article and then you will write it on your words. Write an article on your favorite topic. So class, this is end of the chapter. We will meet in our new class again. Till then, Allah Hafiz.